آج ہم خدا کے پاک اور مقدس کلام میں سے اس موضوع پر جب بات کر رہے ہیں کہ یسوع نے کتنی بار اپنے آپ کو ظاہر کیا، تو بائبل مقدس میں اس پوری سٹوری کو تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں۔ مقدس کلام کہتے ہیں عورتیں صبح سویرے خدا یسوع مسیح کی قبر کی طرف جا رہی ہیں، راستے میں بات کرتی ہیں قبر پر ایک بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، اسے ہمارے لیے کون لڑکائے گا، کون ہٹائے گا، تاکہ وہ تمام تر خوشبودار چیزیں، وہ عطر جو انہوں نے یسوع کی لاش پر ملنے کے لیے تیار کیا ہے، وہ اس کی لاش پر لگا کر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر سکے۔ پریشان اور خوف اور مایوسی کے دلدل میں دھسے ہوئے یہ لوگ، کلام کہتا ہے عورتیں قبر کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتی گئیں، اور جب قبر پر پہنچی تو عجیب معاجرہ تھا، اور معاجرہ یہ تھا کہ جس پتھر کو وہ یہ سوچ رہے تھے کون ہٹائے گا، کلام کہتا ہے وہ پتھر پہلے سے ہٹا ہوا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ اندر قبر پر جا کر دیکھا تو کسی کی لاش، مطلب یسوع کی لاش کو نہ پایا۔ تو لکھا ہے پھر وہ دوڑ کر عورتیں شاگردوں کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ خداوند کی لاش کو کوئی اٹھا کر لے گیا۔ اب شاگرد اس بات سے جو ہے پریشان ہوئے کہ ایک تو وہ یہ سوچتے تھے خداوند ہمیں مخلصی اور آزادی دے گا، یسوع مسیح کی موت کے سبب سے وہ غمزدہ اور پریشان اور اشک بار اور ماتم کرتے اور یہودیوں کے ڈر سے اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھے تھے۔ اب یہ پتہ چلا کہ یسوع کی لاش بھی وہاں پر نہیں رہی، اور کلام میں لکھا ہے وہ دوڑ کر یوحنا اور پترس یسوع کی قبر کے پاس آتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں اور سوائے کفن کے کچھ نہیں ملتا، اور واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کلام کہتا ہے پھر وہاں سے آغاز ہوتا ہے اس بڑی خوشخبری کا۔ کلام میں کہتا ہے عورتیں جب قبر پر آتی ہیں دوبارہ سے، اور کلام میں لکھا ہے وہ وہاں پر ایک فرشتہ کو دیکھتی ہیں، اور لکھا ہے فرشتہ انہیں یہ پیغام دیتا ہے، کیونکہ وہ تو یسوع کی اب لاش کو ڈھونڈ رہے تھے، عورتیں یسوع کی لاش ڈھونڈ رہی تھی۔ غور کر لیجئے گا پلیز، کیونکہ انہوں نے کہا اس کی لاش کو کوئی اٹھا لے کر گیا، مقدس یوحنا کی 20ویں باب کے مطابق۔ لیکن اب انہیں ایک فرشتہ یہ خوشخبری دیتا ہے ڈرو نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں تم یسوع ناصری کو ڈھونڈتی ہو، وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور مقدس کلام میں لکھا ہے کہ انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ یسوع زندہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انہیں عورتوں کو اندر قبر کی جانب لے کر گئے، اور پھر وہاں پر دو فرشتگان نے مزید انہیں بتایا کہ دیکھو یہاں اس کی لاش پڑی تھی، وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے پھر جب یہ تصدیق ہوئی تو کلام میں لکھا ہے عورتیں وہاں سے واپس لوٹی، لیکن ایک شاگرد، کلام میں لکھا ہے عورتوں میں سے ایک شاگرد مریم مگدلینی جو مگدلہ کی رہنے والی تھی، کلام میں لکھا ہے یہ دولت مند تھی اور یسوع سے خاص لگاؤ اور انسیت رکھتی تھی۔ کلام میں لکھا ہے اس کی آنکھوں سے پھر بھی آنسو جاری تھے، اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، اور نمی اس کی آنکھوں میں جیسے اس آنسو کے سب سے آنکھیں دھندلائی ہوئی ہیں۔ باقی عورتیں لوٹی، لیکن مریم مگدلینی وہیں پر رہی، اور وہ اس بات کو پورے طور پر قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ حالانکہ ایک فرشتہ اور پھر دو فرشتوں نے پیغام دیا، اور کلام میں لکھا ہے تب وہ ہوا جس کے بارے میں شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح آپ اس پر ظاہر ہوئے۔ اور اگر مرکز کی انجیل 16 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت پڑھے تو وہاں لکھا ہے ہفتے کے پہلے روز جب وہ صبح جی اٹھا تو پہلے، میں آپ کی توجہ اس لفظ پر کرانا چاہوں گا، پہلے مریم مگدلینی کو جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھی دکھائی دیا۔ اس نے جا کر اس کے شاگردوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی۔ یسوع مسیح سب سے پہلے، اور میں آپ کے لیے یہ بھی بات بتانا چاہوں گا کہ جب یسوع مسیح پر ظاہر ہوئے تو کلام میں لکھا ہے وہ یہ سمجھی کہ شاید کوئی باغبان ہے، اس سے کہتی ہے میاں اگر تو نے اس کی لاش کو کہیں رکھا ہے تو ہم اسے یہاں سے لے جاتے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی، شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یسوع کی لاش، کیونکہ اس کی قبر جو ہے وہ یوسف ارمتیہ کی تھی جو دولت مند شخص تھا، اور اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ قبر اس کے لائق نہیں، یہ تو ایک ایکسپینسو قبر ہے، تو وہ یہ سوچ رہے کہ اگر اس کی لاش ہمیں دے دی جائے ہم اپنی حیثیت کے مطابق جا کر اسے کہیں دفن کر دیں گے، اس کی لاش ہمیں دے دی جائے۔ لیکن مقدس کلام کہتا ہے پھر یسوع نے کہا
है मरियम। तो कलाम में लिखा है उसकी आंखें जो आंसुओं से धुंधला चुकी थी, लिखा है फिर यीशु की आवाज को सुनकर वो जान गई और समझ गई कि ये तो उस्ताद है, ए रबूनी, ए उस्ताद। लिखा है फिर उसकी तरफ वो लपकी ताकि उसे सजदा करे, उसके पांव को छुए। और फिर कुछ और बातें यीशु ने कहा मुझे ना छू, क्योंकि अब तक मैं बाप के पास आसमान पर नहीं गया। मतलब उसका ये था कि तेरे ज़हन में बहुत सारे सवाल हैं, मुझे अब रोके ना रख, पहले मेरे भाइयों के पास जा और उन्हें ये खबर दे कि मैं मुर्दों में से जी उठाऊं। तो ये बाइबल मुकद्दस का पहला वाकया है, पहला वाकया जहां पर कलाम कहता है मरियम मगदलीनी पर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद जाहिर हुए। और ये एतवार का रोज यीशु जी उठने के बाद पहली बार मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुए। उसके बाद मुकद्दस कलाम कहता है वो औरतें जो फरिश्तों का पैगाम सुनकर मरियम मगदलीनी से गोया पहले जो है कब्र से लौटी ताकि शागिर्दों तक जाए, लेकिन सच ये कि वो डरी हुई और सहमी हुई और हैबत उन पर छाई हुई थी, क्योंकि उनके पास पहले पैगाम ये था कि यीशु की लाश को कोई उठाकर ले गया। लेकिन अब उनके पास पैगाम यह है कि उसकी खबर खाली है, वो मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ईमान में लर्जिश और कमजोरी मौजूद थी। कलाम में लिखा है फिर यीशु उन औरतों पर जाहिर हुआ, और उन औरतों में मैं आपको बताता चलूं, उन औरतों में याकूब और यूसुफ की मां मरियम जो यीशु मसीह की मां थी जिस्मानी एतबार से वो, और फिर जब्दी के बेटों की मां सलूमी गालबन जो रिश्ते में एक तरह से मरियम की शायद बहन भी हो सकती है, और क्लोपास की बीवी। मुकद्दस कलाम कहता है ये चंद एक औरतें, कलाम में मुकद्दस कलाम कहता है ये भी कब्र से पैगाम लेकर जा रही थी, और फिर खुदावंद यीशु मसीह उन पर भी जाहिर हुए। अगर आप इस बात को देखना चाहें तो मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब देखें, 28वां बाब और मुकद्दस कलाम में 8वीं और 9वीं आयत लिखा है वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने को दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला, किन से? औरतों से। यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम, तुम्हारी सलामती हो। यीशु के जी उठने का मकसद तुम्हारी सलामती हो। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया, उसकी प्रस्तिश, उसकी इबादत की, क्योंकि वो इबादत के लायक है। सो यहां पर दूसरी बात खुदावंद यीशु मसीह अपने मुर्दों में से जी उठने के बाद कलाम में लिखा औरतों पर, तो यीशु मसीह औरतों पर 2 मरतबा, मरियम मगदलीनी पर 1 मरतबा और कब्र के पास बात हो रही है। फिर कलाम में लिखा रास्ता में इन औरतों पर जो कब्र से लौटी थी उन पर भी खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हुए। तो ये वाकया 2 हो गए, और ये भी वाकया एतवार हफ्ते के पहले दिन एतवार के रोज कलाम कहते हैं वजूद में आया। और उसके बाद मुकद्दस कलाम में पढ़कर देखें कि जब औरतों ने खुशी भरा ये पैगाम जाकर शागिर्दों को दिया, पहले कब्र पर पतरस और यूहन्ना दोनों दौड़े थे, लेकिन इस बार जब शागिर्दों को यह पैगाम मिला यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया है, तो कलाम में लिखा है इस बार पतरस अकेला यीशु की जानिब वो दौड़ा ताकि कब्र पर जाए। और कलाम में लिखा जब वो कब्र पर आया अकेला दौड़ रहा था, उसे कुछ नहीं मिला। और फिर कलाम कहता है लूका की इंजील वो अपने घर की जानिब चला। और फिर मैं पूरा यकीन रखता हूं इसी दरमियान वो वाकया पेश आया जिसको वो सोच भी नहीं रहा था, हालांकि यीशु ने कहा था। और कलाम कहता है यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए। सो रसूलों में सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह अगर किसी से मिले तो वो पतरस रसूल है। और कलाम कहता है, इस बात का रेफरेंस मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, मुकद्दस लूका की इंजील 24वां बाब 32वीं आयत लिखा है वो ये कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमौन कैफा को पतरस को दिखाई दिया है। और पतरस ने आकर शागिर्दों को बताया कि औरतें ठीक कहती हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो मुझे दिखाई दिया है, वो मुझसे मिला है। औरतों को मिला, मरियम मगदलीनी को सबसे पहले 1, नंबर 2 उसके बाद चंद एक और औरतों को, उसके बाद शमौन पतरस को। सो 3 वाकयात बाइबल मुकद्दस में एक ही दिन में 3 वाकयात हो चुके हैं। और फिर मुकद्दस कलाम कहता है अमावस की राह पर एक वाकया पेश आता है। 2 शागिर्द, याद रहे ये रसूल नहीं, 12 रसूलों में से नहीं थे, 2 शागिर्द
जो ईद फसा मनाने के लिए यरूशलेम को आए हुए थे और खुदावंद की बादशाही के मुंतजिर थे और यीशु मसीह के सारे माजरे से पूरी तरह वाकिफ थे, ये दोनों कलाम कहता है इन्हीं बातों पर गुफ्तगू करते हुए कि हमें उम्मीद थी निजात यीशु से मिलेगी, वो बादशाह होगा। कलाम में लिखा गुफ्तगू करते हुए अमावस की राह पर थे और वापस लौट रहे थे घरों को। तो कलाम में लिखा है बातचीत करते करते उनके साथ एक अजनबी आ मिला, और कलाम में मुकद्दस लूका की 24-15 आयत में लिखा है वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया। सो इनमें एक शख्स जो है, एक शागिर्द जिसका नाम बाइबल मुकद्दस में कलमबंद है, किलपास, और लिखा है जब खुदावंद उनसे बातें कर रहा था तो लिखा है रास्ते में खुदावंद ने उनके साथ कोई मौजूजा तो नहीं किया, लेकिन उन पर इंकशाफ करता गया। कैसे ऐते अतीक में पेशन गोइयां जो लिखी गई थी, जरूर है कि वो दुख उठाए, जरूर है कि वो गुनहगारों के हवाला किया जाए, और जरूर है कि वो मुर्दों में से जी उठे। वो सारे नविश्ते जो शुरू से उसके मुतालिक थे उन पर जाहिर किए, और फिर वक्त आया जब यीशु उनसे आगे बढ़ना चाहता था, उनके साथ बैठा खाना खाते वक्त लिखा है जब रोटी तोड़ी और बरकत चाहिए तो उन्होंने यीशु को पहचान लिया, और कलाम में लिखा है उन्हें समझ आई कि ये तो खुदावंद है, ये तो जी उठे हैं। और कलाम में लिखा है ये खुशी की खबर लेकर गोया वो थके हुए तो थे, लेकिन उस शाम फिर से वापस यरूशलेम को दौड़ना चाहा, और लिखा चल पड़े ये सोचकर कि जो कुछ औरतों ने कहा वो सच है कि यीशु जिंदा हो गया है, जो कुछ शमौन पतरस ने कहा वो सच है, यीशु जी उठा है। और इन दो शागिर्दों ने कहा यीशु हमसे रास्ते में मिला, और हम जोश से भर रहे थे उसके साथ बातें करके, वो कि उन्हें मालूम ना था कि ये खुदावंद है। सो ये चौथी बार खुदावंद उन पर जाहिर हुआ, और फिर पांचवी बार कलाम में लिखा है यरूशलेम से ये वापस अमावस की रात से लिखा है ये उसी रात से वापस लौटे और यरूशलेम में आए, और शागिर्दों के पास आकर वो वाकया बता रहे थे कि यीशु हमसे मिला, और कलाम में लिखा है वो बातें कर ही रहे थे, लूका 24-36 कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। और ये पांचवी मर्तबा यीशु ने तमाम शागिर्दों पर, तूमा के अलावा जो शागिर्द थे वहां पर मौजूद थे, और लिखा उन पर जाहिर हुए। सो एतवार के रोज अपने जी उठने के बाद यीशु 5 बार अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए, और मुकद्दस कलाम भी कहता है 5 बार वो जाहिर हुए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह 5 मर्तबा, और उसके बाद भी जब हम इस्लाम के दूसरे पार्ट 2 पर जब हम बात करेंगे तो फिर हम कहेंगे बाइबल में कितनी दफा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह शागिर्दों पर जाहिर हुए, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज सिर्फ एतवार के दिन खुदावंद कितनी बार जाहिर हुए, तो जवाब है 5 मर्तबा। अब सवाल ये पैदा होता है 5 का आदत बाइबल में किस तरह पेश किया गया है। आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, जिसका मुझे एहतराम है। मेरे नजदीक ये है कबूल कर सके तो बहुत बेहतर। बाइबल मुकद्दस में से मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा, मुकद्दस मत्ती की इंजील 20वां बाब कि 5 का आदत किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको पेश करता है, अलामत किस चीज की है। 20वें बाब में खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील, उसकी पहली आयत, क्योंकि आसमान की बादशाह उस घर के मालिक की मानी जो सवेरे निकला ताकि अपने पाकिस्तान में मजदूर लगाए। तो मैं बताना चाहूंगा, आगे लिखा है और तीसरी आयत, फिर वो पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने, दूसरी आयत सॉरी, और उसने मजदूरों में से 1 दिनार रोज ठहराकर उन्हें अपने पाकिस्तान में भेज दिया। सवेरे निकला, मतलब तकरीबन 6 बजे के आसपास सवेरे निकला ताकि मजदूरों को अपने खेत में काम पर लगाए और 1 दिनार उनकी उजरत ठहराए। तीसरी आयत में क्या, फिर पहर दिन चढ़े के करीब गया तो कुछ औरों को देखा, उन्हें कहा तुम भी खेत में जाओ, जो तुम्हारा बनता है तुम्हें दिया जाएगा। फिर दोपहर के वक्त, फिर तीसरे पहर के करीब, और फिर 1 घंटा दिन रहे, मतलब 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और तकरीबन 5 बजे के करीब 1 घंटा, 6 बजे दिन खत्म हो जाता। तो शाम 5 बजे के करीब और मजदूरों को देखा, उन्हें भी कहा आ जाओ और खेत में काम करो, तुम्हें भी जो तुम्हारा बनता है दिया जाएगा। और मुकद्दस कलाम में लिखा है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, नीचे से शुरू किया गया, और लिखा है जो 1 घंटा जिसने काम किया उसे भी 1 दिनार
पूरा दिया गया कि ये तुम्हारा अजर है। और मैं यहां पर आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहूंगा कि कलाम कहते हैं कि 20 चैप्टर्स में मत्ती की इंजील के 5 मर्तबा खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील में बताया कि पाकिस्तान का जो मालिक है, कलाम में क्या, वो 5 मर्तबा गया और मजदूरों को पाकिस्तान में काम करने के लिए बुलाया। और ये 5 मर्तबा का अदद यहां से मुझे यूं मालूम होता है कि जैसे ये खुदा के फजल का, ग्रेस का, खुदा के बड़े रहम का अदद है। और किसी ने सुबह से जो काम किया उसे भी हमेशा की जिंदगी रिवॉर्ड के तौर पर, इनाम के तौर पर दी जाएगी। और जो दिन रहे 1 घंटा रहता उसे भी हमेशा की जिंदगी दी जाएगी। इसका मतलब एक वो शख्स ईमानदार जिसने बड़ी तवज्जो की, वो भी हमेशा की जिंदगी का वारिस है। एक वो ईमानदार जो शायद यीशु के आने से कुछ वक्त पहले उसने तौबा की, वो भी हमेशा की जिंदगी पाएगा। किसी ने सलीब पर उल्टे लटक पर जान देकर हमेशा की जिंदगी पाई। किसी ने सूली पर सिर्फ ये कहकर कि ऐ खुदावन जब तू अपनी बात से मुझे याद रखना। सो ये ग्रेस है कि हर वो शख्स जो कैसा भी गुनहगार क्यों ना हो, कैसा भी गुनहगार क्यों ना हो, और जिंदगी के किसी मोड़ पर क्यों ना हो, सिर्फ उसने ये कहना है, ऐ खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। तो खुदावंद का जी उठने का बड़ा पैगाम 5 मर्तबा जी उठकर, जाहिर होकर खुदावंद ने उस फजल की पूरी तस्वीर पेश की गई। और वो ये है कि दुनिया में कैसा भी गुनहगार क्यों ना हो, जिंदगी के किसी अयाम में, जवान हो, लड़कपन में हो, बूढ़ा हो जाए, जिंदगी की आखिरी सांस तक मौका है कि बस वो ये कहे, ऐ खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। तो ये फजल की तस्वीर, बड़ी फजल की तस्वीर को पेश करता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यीशु इसीलिए जिंदा हुआ ताकि वो हमें बता सके कि तुम्हारी सलामती हो। सो काश आज जब हमने मुकद्दस कलाम में से इस बात को जाना कि यीशु मसीह एतवार ही के रोज कितनी बार मुर्दों में से जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए, तो उसका जवाब है 5 मरतबा। मरियम मगदलीनी, चंद एक और औरतें, पालूस, पतरस रसूल, उसके बाद अमावस की रात पर 2 शागिर्द, और 5वीं बार तमाम शागिर्द जो तूमा के अलावा थे कलाम निकम पर जाहिर हुए। तो ये मुकद्दस कलाम की एक तस्वीर है जो मैंने आप तक पहुंचाई, और मैं यकीन रखता हूं कि इस कलाम के सबसे आप से खुद बरकत पाएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर करें, बांटें, ताकि वो भी मुकद्दस कलाम के सबसे बरकत पाएं। और उन्हें यकीन दिलाइए कि आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में कहीं भी क्यों ना हो, आप यीशु से सिर्फ ये कहें कि खुदा मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मुझे अपनी बादशाही में याद रखना। खुदा कहेगा मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा अपने कलाम के सबसे बड़ी बरकत